Hello everyone. In this video, we are going to talk about what is called as Lotka-Volterra model. Before starting with Lotka-Volterra model, it is important for us to understand about the growth rate, that how an organism increases its number. Growth means उसका नंबर कैसे बढ़ता है, इंक्रीज इन नंबर. ग्रोथ तभी होती है जब या तो नंबर बढ़ता है या फिर उसका साइज बढ़ता है. किस रेट से, मतलब टाइम के साथ साथ उसका नंबर किस तरीके से बढ़ता है, that is called as growth rate. So first we have to understand that how an organism number increases before understanding about Lotka-Volterra model. So few basic things are, first I will discuss few basic things. ग्रोथ रेट का मीनिंग होता है कि नंबर कैसे चेंज हो रहा है. मतलब एन, डी एन मतलब हाउ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज changing. dn means initial size was this and final size was n2. So how the population size is changing, this dn by dt is representing that initially this was the population size minus finally this was the population size with respect to the time change, कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से साइज चेंज हो रहा है. Mostly it will depend upon two factors, which is birth rate and death rate. बर्थ रेट जितना ज़्यादा होगा और डेथ रेट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा. सो चेंज इन पॉपुलेशन with time we can write it as birth rate minus death rate, because जितना ज़्यादा birth rate है और जितना कम डेथ रेट है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज होगा. So this change is representing by difference in birth rate and death rate. If this difference come out to be negative, it means my death rate is more than birth rate, means population size is decreasing. But if this difference come out to be positive, it means that my birth rate is more than my death rate. So it implies the population size is increasing. We can also write my birth rate and death rate in terms of my per capita birth. Per capita, capital B is representing birth rate, capital D is representing death rate. Now come the terms small b and small d. What are these terms denoting? Small b is representing birth per capita, मतलब पर इंडिविजुअल हम बर्थ को डिवाइडेड बाय पर इंडिविजुअल अगर कर देंगे, बर्थ रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या दे देगा मुझे, बर्थ पर कैपिटा. So we can write it down as birth rate divided by total population will give me small b. Small b is birth rate per capita because we have divided it by sample size. Next come the concept of this, that we can write this capital B as small b multiplied by n. This is how we can write it down, and n is representing my population size. Similarly, we can write capital D, death rate, also as small d multiplied by n, where small d is representing death per capita, मतलब per individual, because we have divided it by number of individual. So we can write this capital B as small b multiplied by n minus small d multiplied by n. Next, we will take n as common and b minus d. This b minus d is represented by a constant which is called as r. R is called as intrinsic growth rate constant. ये एक constant होता है intrinsic growth rate R, जो represent करता है birth per capita minus death per capita. This is representing by R, small r. Mind it, this small r is not giving me the difference between birth rate and death rate. It is giving me the difference between birth per capita minus death per capita. Remember it.
So if this R is positive, that means B is more and D is less. मतलब birth per capita is more as compared to death per capita, which means my population is increasing. And similarly, vice versa, if R is negative, it means that D is more than B, meaning population size is increasing. This is the important equation of growth rate, which is called as exponential growth rate. This is called as exponential growth rate. But remember, कभी भी जब भी ग्रोथ होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स अराइज करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं. देयर आर सम लिमिटेशंस टू द ग्रोथ, जैसे कि खाना बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है ग्रो करने के लिए, और भी ऑर्गेनिज्म है जो उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं. सो इन सब चीज़ों को भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा इस इक्वेशन में. So here comes a term which is called as carrying capacity. Carrying capacity को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कैपिटल के से. इसका मीनिंग क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट उस पॉपुलेशन का कितना मैक्सिमम साइज होल्ड कर सकता है, बिकॉज उस इन्वायरमेंट की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. कैसे लिमिटेशंस हैं? वहाँ पे खाना कम है, वहाँ पे स्पेस कम है ग्रो करने के लिए. सो उस इन्वायरमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ही अपने में ग्रो करने दे सकती है. ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल की. So capital K is representing the population size only. So अगर कोई हमसे बोले कि carrying capacity क्या होता है, that is the maximum population size that the environment can hold. So it has the same unit as the number of population. Remember it always कि उसका unit हमेशा same रहेगा. But it is telling me the maximum size that environment can hold. So my exponential equation this, इसके अंदर एक फैक्टर और आ गया which is k minus n divided by k. This k is maximum carrying capacity minus what is my population size present there divided by k. This is called as logistic growth rate. Because of the limitation of food and space, there is a new factor introduced which is called as logistic growth rate. And next, one more point. If my population size is very small, if it is very small as compared to my carrying capacity, what I can say कि n को मैं zero ले लूँगी. अगर n k के सामने बहुत छोटा है, उसका मतलब क्या होगा? It will come out to be k divided by k, which is 1. So my equation come out to be the exponential growth rate. So इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉपुलेशन साइज अगर बहुत कम है और मेरी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो इन्वायरमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को होल्ड कर सकता है, बट जो मेरी पॉपुलेशन साइज है वो बहुत कम है, मतलब खाना बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में है. अनलिमिटेड अमाउंट में है तो कोई लिमिटेशन नहीं है. सो मेरी पुरानी इक्वेशन आ जाएगी विच इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी विच इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट. जब हमने बोला यहाँ पे खाने की कमी हो गई, जगह की कमी हो गई, या फिर कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू माई पॉपुलेशन साइज, तब मैं वो फैक्टर कैरिंग कैपेसिटी का लेकर आई थी. बट जैसे ही मैंने खाने की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड कर दी, मैंने स्पेस अनलिमिटेड कर दिया, तो उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू माई पॉपुलेशन साइज. So the equation again converted into exponential growth rate. This is the relationship between exponential growth rate and my logistic growth rate. If I will indicate it on my graph that n on the number of individuals on the y-axis with respect to time, exponential growth में कुछ limitation नहीं है. So population का size बहुत fastly increase करेगा. So it is increases.
it is a J-shaped curve. And when I have limitations of food resources, कुछ कैरिंग कैपेसिटी है पॉपुलेशन की, तो जैसे ही पॉपुलेशन का साइज कैरिंग कैपेसिटी पे आएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाएगी. So this is the curve for my logistic growth rate, which is a kind of J-shaped curve. These are the differences between the two growth models, two most importantly growth models used in my population. अब हमें समझ आ गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मतलब इनफाइनाइट रिसोर्सेज है या फिर पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है. और लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट कब होगी? जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है वो कैरिंग कैपेसिटी को अचीव हो गया. So these are the differences between two type of growth rate. यहाँ पे हमने बात करी थी एक्सपोनेंशियल से लॉजिस्टिक कब हुआ? जब खाने की कमी है, जगह की कमी है. लेकिन अगर हम एक चीज और कंसिडर करें कि वहां पे कंपटीशन हो गया, मतलब एक स्पीशीज वहां पे थी और वहीं पर दूसरी नई स्पीशीज आ गई जो सेम वही खाना खा रही है जो पहली स्पीशीज खा रही है, तो अब क्या होगा? अभी खाना तो लिमिटेड हुआ, मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट तो है, बट साइड बाय साइड एक कॉम्पिटिटिव एजेंट और आ गया जिसको सेम वही खाना खा रहा है. तो यहाँ पे अप्लाई होता है what is called as Lotka-Volterra model. This is when what happens when competition takes place between species. ये जो दो ग्रोथ मॉडल्स हमने पढ़े थे ऊपर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, उसमें हमने यूजुअली कंपटीशन को नहीं लेकर आए थे कंसिडरेशन में. बट जब हम कंपटीशन को भी कंसिडरेशन में ले आएंगे तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि खाने की तो कमी हो जाएगी. तो मतलब पहली चीज लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट होगा. दूसरी चीज यहाँ पे सिर्फ हमने इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को लिया था लॉजिस्टिक में. अब हमें लेना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिज्म कम्पीट कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. क्या हो सकता है? पहला केस, या तो एक स्पीशीज जीत जाए दूसरी हार जाए. क्या अगला केस क्या हो सकता है? दोनों मिल बांट के वहां रह ले और खाने को पार्टीशन कर ले कि ये खाना तुम खाओगे, वो खाना मैं खाऊंगी. उस केस में क्या होगा? दोनों स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी, दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट इकट्ठे रहेंगी विथ पार्टीशनिंग ऑफ द रिसोर्सेस. तो इस चीज को समझने के लिए आता है Lotka-Volterra मॉडल, विच इज यूजुअली यूज्ड इन प्रेडेटर प्रे मॉडल. प्रेडेटर प्रे, प्रे वो होता है जिसको एक प्रेडेटर खाता है, मतलब प्रेडेटर आया, compete कर रहा उसके रिसोर्सेस के साथ, क्या होगा? प्रे मारा जाएगा और प्रेडेटर जीत जाएगा. सो जब हम खाने की स्कार्सिटी या स्पेस की स्कार्सिटी के साथ एक नया स्पीशीज भी ले आते हैं जो compete करता है दूसरे स्पीशीज के साथ, तब हम ना तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट बोल सकते हैं ना हम लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट बोल सकते हैं. तो उसके लिए मुझे एक नई इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी विच वाज गिवन बाय Lotka-Volterra मॉडल. This is how these two, exponential growth rate and logistic growth rate, are related to my Lotka-Volterra model. So अब इतना चीज हमें समझ आया कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सो लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट होगा ही होगा. लेकिन अब हमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि ये बताएगा एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. सो इसके लिए एक हम न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग बाय अल्फा. अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग इम्पैक्ट. अभी अल्फा और सबस्क्रिप्ट लिखा है 1-2. इसका मीनिंग क्या है? इम्पैक्ट ऑफ second species on the first species. So it is impact of second species on the first species. लेकिन मैं अल्फा 1-2 की बजाय अल्फा 2-1 भी लिख सकती हूँ. इसका मीनिंग क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज ऑन माई सेकेंड स्पीशीज. तो दीज आर द टू टर्म्स जिनको हम अल्फा 1-2 या अल्फा 2-1 लिखते हैं. अब जब हमें इनके लिए इक्वेशन डालनी पड़ेगी, हमने पहले चीज क्या बोली? खाना. कंपटीशन आएगा तो खाना तो लिमिटेड हो ही जाएगा.
सो पहली चीज, देयर शुड बी अ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इतना चीज सेम लॉजिस्टिक का है कि द नंबर ऑफ पॉपुलेशन N1 का कितना पॉपुलेशन हो रहा है, N1 मतलब फर्स्ट स्पीशीज का क्या पॉपुलेशन साइज में चेंज है, R मल्टीप्लाई बाय N1 कितना है नंबर में, कैरिंग कैपेसिटी माइनस द पॉपुलेशन साइज ऑफ N1 डिवाइडेड बाय K। अभी क्या होगा, अब एक नया फैक्टर और इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो ये बताएगा कि एक फर्स्ट स्पीशीज की बात करें उनका नंबर कितना है, तो सेकंड स्पीशीज पहले स्पीशीज की ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए हमने बोला सेकंड स्पीशीज फर्स्ट की ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेगी, मल्टीप्लाई बाय उसका नंबर कितना है सेकंड स्पीशीज का। सो ये जितना ज्यादा होगा उसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्पीशीज उतना ज्यादा वन स्पीशीज को इम्पैक्ट कर रही है, मतलब उतना ज्यादा वो फर्स्ट की ग्रोथ को रोक रही है, मतलब फर्स्ट का ग्रोथ का नंबर कम होता जाएगा। इसीलिए हमने माइनस एक साइन डाल दिया बीच में। यही अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज 2 सेकेंड स्पीशीज का क्या होगा, इतनी चीज तो सेम रहेगी, लेकिन अब 2 को कौन इम्पैक्ट करेगा, 2 को इम्पैक्ट करेगा 1। सो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट स्पीशीज ऑन द सेकेंड स्पीशीज और मल्टीप्लाई बाय कितना पॉपुलेशन साइज है उस फर्स्ट स्पीशीज का। So this is the new factor which is introduced in Nilotka-Volterra model, and these are the two equations that you have to learn it. कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरी लॉजिस्टिक इक्वेशन की इक्वेशन है और उसके अंदर माइनस कर देंगे कि अगर पहली स्पीशीज का नंबर देखना है तो सेकंड स्पीशीज का फर्स्ट पे क्या इम्पैक्ट है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड का नंबर कितना है, बस एक नया फैक्टर दोनों इक्वेशंस में ऐड हो जाएगा। दिस इज अबाउट द लॉटका-वॉल्टेरा मॉडल। अब क्या हो सकता है, मैंने दो कंडीशंस बताई थी, या तो 1 जीत जाए या 2 जीत जाए, या दोनों के बीच में पार्टीशनिंग हो जाए रिसोर्सेस की, मतलब दोनों स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी वहां पे। तो इसके लिए 4 ग्राफ्स इंडिकेट करते हैं, 4 ग्राफ बने होंगे, हमें ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन जीतेगा। तो ये चीज मैं कैसे बता सकती हूँ, देखो पहली चीज y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सेकेंड स्पीशीज, x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ द फर्स्ट स्पीशीज। अभी ये क्या है, दिस इज K1 which means this is the carrying capacity of the first population, एंड यहाँ पे लिखा है K2, मतलब ये कैरिंग कैपेसिटी है सेकेंड पॉपुलेशन की। अब देखो K1 बड़ा है या K2 बड़ा है, बड़ा क्या है K1, मतलब K1 ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि K1 का मतलब फर्स्ट स्पीशीज का कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब फर्स्ट स्पीशीज ज्यादा ग्रो कर पाएगा एज कंपेयर टू सेकेंड स्पीशीज, इसलिए स्पीशीज 1 जीत जाएंगी। दूसरे केस में क्या है, K1 यहाँ पर है और K2 यहाँ पर है, K1 कम है K2 से, मतलब इस लाइन के ऊपर क्या होगा, इस लाइन मतलब यहाँ पे इस लाइन पे K1 है, सो K1 यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी फर्स्ट की आ गई, और कैरिंग कैपेसिटी सेकंड की कब आएगी, यहाँ पे। सो जब पॉपुलेशन साइज इससे बढ़ेगा तो क्या होगा कि K1 की तो कैरिंग कैपेसिटी आ गई, मतलब K1 और तो अपना नंबर इंक्रीज कर नहीं सकता, लेकिन K2 की अभी तक कैरिंग कैपेसिटी नहीं आई। सो यहाँ पे जो स्पीशीज होंगे वो स्पीशीज 2 ग्रो करेंगे एंड स्पीशीज 2 विन। सिमिलरली अगर हम देखें इस पॉइंट पे K2 आ गया, तो जब पॉपुलेशन इससे ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो यहाँ इससे ऊपर K2 ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी आ गई, बट K1 की कैरिंग कैपेसिटी नहीं आई अभी तक, so species 1 will win. So with the help of K1 and K2 position, you would able to tell that which species win and which species कौन सी चीज लूज करेगी। और ये एरिया वो है जहाँ पे दोनों स्पीशीज ग्रो कर रही हैं, K1 भी K2 भी, क्योंकि दोनों का अभी तक कैरिंग कैपेसिटी नहीं आई। नेक्स्ट दो और कर्व्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, इफ वी विल सी दीज कर्व्स, यहाँ पे क्या है K1 इधर है और यहाँ पे K2 इधर है।
अभी क्या हो रहा है, अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे K2 भी नहीं आया और इस पॉइंट पे K1 भी अभी तक नहीं आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आए। तो हमें नहीं पता कि स्पीशीज 1 जीतेगी कि स्पीशीज 2 जीतेगी, क्योंकि K1 K2 दोनों ही ज्यादा हैं। वी विल नॉट एबल टू टेल which species will win with the help of these curve। नेक्स्ट आता है इस टाइप का कर्व जहाँ पे K2 भी कम है और K1 भी कम है। अभी क्या हो रहा है, दोनों K2 भी कम है K1 भी कम है, तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा इन दोनों लाइंस के बीच में जहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन होता है। उस पॉइंट पे दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट करेंगी। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन एक पॉइंट हमें याद रखना है, इस पॉइंट को अगर हम नीचे एक्सट्रापोलेट करें तो क्या है, वो पॉइंट K1 से भी कम है और K2 से भी कम है। मतलब जिस पॉइंट पे दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका मतलब K1 भी वहां पे अचीव नहीं हुआ, K2 भी वहां पे अचीव नहीं हुआ। मतलब जितना वो कैरी कर सकता है वो पॉपुलेशन फर्स्ट स्पीशीज को और सेकंड स्पीशीज को, उससे कम ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो कर रहे हैं, बट दे आर को एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट। This is about the basic principles of Lotka-Volterra model. With this, I will end up my video. Thank you for listening and stay tuned for the next video.